Hello, everyone, and a very warm welcome to the fourth episode of our podcast series KAST, presented to you by KAISPE. I am Zabad Nadeem, the marketing executive at KAISPE, and आज का हमारा टॉपिक होगा Power Apps and AI. Obviously, AI is the buzzword of the town, and it's one of the most trending topics. वैसा हो नहीं सकता कि हम AI के बारे में बात नहीं करें. So today with us, we have one of the most talented product engineers at KAISPE, none other than Imran Shahid. So Imran, please introduce yourself and tell me a little bit about your experience, about what you've worked on, और अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा. Thank you so much, Zabad, for inviting me on this podcast. Actually, I have been working on Dynamics 365 and Power Platform since last 4 years, and I have around 7 years of experience working in this IT industry, and I have a lot of expertise and extensive experience in this domain. And here at KAISPE, I have been working with product development team and on the service side and product side. So I've been looking into the team as well. Okay, so Imran, जैसे आपने mention किया कि you worked on the Power Platform, आपका experience है quite extensive experience of working in the Power Platform and products के side पे. तो I would like to ask you कि मतलब हमारे viewers के लिए आप ये बताएं कि what is Power Platform, क्या चीज़ें आती हैं Power Platform के अंदर, and इसकी development में क्या होता है basically? Yeah, so basically Power Platform is like a low code, no code application building platform within the Power Apps, and you can say that Power Apps is a set of applications and suite of services where you can build the custom application without the extensive knowledge or the deep knowledge of the technical side. So if you are coming from a business background and you don't have a technical experience and expertise, so you can easily build the application using the as you know about the Copilot. So Copilot is one of the feature that helps you to build the application without having a certain technical knowledge. So Imran, जैसा आपने mention किया कि Power Platform basically caters to, you could say, the tech stack of many industries, मतलब multiple industries को cater कर सकता है ये, and obviously एक technology solution है जो कि इस वक्त लोग use कर रहे हैं. तो I'm really interested in knowing that which industries does Power Apps basically cater to? Yes, so actually देखें Power Apps जो आपके small to medium businesses होते हैं या आपके enterprise level businesses होते हैं, so उन सब industries को cater कर सकता है, but it depends के company size क्या है. For example, Power Apps की अगर मैं आपको industry के specs example दूँ तो healthcare में भी Power Apps use हो रहा है, right? And आपकी retail industry में भी Power Apps use हो रहा है. So आप it depends कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में आप उसको मतलब देख सकते हैं, बट देर आर सम लिमिटेशंस इन एज एस्पेक्ट. आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, तो एट सम पॉइंट इट विल कि आपको लगता है कि हाँ जी ये चीज़ नहीं हो सकती. सो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हेल्थ केयर में आपको एक पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है जिसमें आपको पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री रखनी है, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम रखना है. तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो विद द हेल्प ऑफ पावर एप्स यू कैन ईजिली डेवलप. और अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल में आपकी इन्वेंट्री आ जाती है और आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो it covers every aspect of the industry and it targets. So if you अगर हम बात करें कि कोई ऐसी वो है इंडस्ट्री है जिसमें thousands of peoples हैं, 10,000 plus peoples हैं. So we need to identify the business size and everything before implementing or before suggesting the Power Apps. And yeah. Okay, so Imran, as you mentioned how Power Apps have helped the retail industry, the manufacturing and especially the healthcare, जैसे आपने सारी बात की इन सारी इंडस्ट्रीज़ की, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो आपने खुद किया हो कि समथिंग दैट यू वर्कड ऑन इन इंडस्ट्री से स्पेसिफिक? यस, सो हमारा एक कस्टमर था, ठीक है, उसकी एक बिज़नेस प्रॉब्लम थी. उनके पास कोई सिस्टम नहीं था. दे आर बेसिकली अ रॉक माइनिंग कंपनी. सो दे हैव अराउंड 5,000 नंबर ऑफ़ यूज़र्स और उनके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी और उनका बिज़नेस बेसिकली रॉक माइनिंग का था. और वो एक होता है RFO, आप रिक्विजिशन रेस करते हैं, कोई भी आपको आइटम चाहिए तो ऑब्वियसली उनकी इंडस्ट्री में
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें उनको एक कोई आइटम रिक्वेस्ट करना पड़ता था, तो उनको उनके पास कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं था। सो हमने उनका जो बिज़नेस प्रॉब्लम था वो ये था कि लाइक अगर आपको कोई आइटम रिक्वेस्ट करना है तो आप एक पेपर पे उस आइटम की डिटेल्स लिखेंगे, फिर वो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास लेके जाएंगे, वो अप्रूवल करेंगे। सो ये सारी चीज़ें थी, फिर उसमें डिफरेंट अप्रूवल प्रोसेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। तो ये मैनुअल चीज़ को मतलब उनको बड़ा इशू था कि भाई आप इसमें सिक्योरिटी का मसला था, इसमें डेटा लॉस का चक्कर था, अगर पेपर कहीं मिस आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हमने उनको एक सोल्यूशन प्रपोज किया लाइक दैट इज़ बिल्ड ऑन पावर प्लेटफॉर्म। लाइक वी हैव एन एप्लीकेशन विच वी कॉल्ड परचेज एक्विजिशन एप्लीकेशन। सो जो उनकी ये सारी प्रॉब्लम थी उनको हमने एक स्ट्रीमलाइन कर लिया, ऑटोमेट कर दिया, वर्क फ्लोज बना के बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू। लाइक दे जस्ट हैव एन एप्लीकेशन, दे जस्ट राइट द इन्फॉर्मेशन, एंटर द इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, और लाइक they just submit the application and like it will go all over like approval process with different departments. So like एक digitization हो गई सिस्टम में, जो वो मैनुअल चीज़ें सारी कर रहे थे वो अब ऑटोमेट हो गई हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट लाइक वी कैन स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस, देयर यू कैन से वर्क फ्लोज एंड लाइक एवरीथिंग। सो उनकी बिज़नेस प्रॉब्लम ये थी, और हमारा जो सोल्यूशन था वो हमने उसको इस तरीके से उनकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। एक पावर एप्स पे हमने उनकी एप्लीकेशन बना के उनको दी, और लाइक दे आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन नाउ। सही। तो इमरान, जैसे आपने कहा कि रॉक माइनिंग कंपनी थी और आप लोगों ने एक पावर प्लेटफॉर्म पे सोल्यूशन बना के उन्हें प्रोवाइड किया, तो लाइक व्हाई वुड दे चूज़ पावर प्लेटफॉर्म? मतलब इतने टेक स्टैक्स हैं हमारे पास ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री एंड काफ़ी प्रिवेलेंट हैं, तो व्हाई वुड एनी वन इन फैक्ट चूज़ द पावर प्लेटफॉर्म फॉर सच अ बिजनेस सोल्यूशन? यस, सो बेसिकली सबसे अच्छी बात जो है लाइक जो पावर प्लेटफॉर्म की है वो एक ये है कि इट्स अ लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म, राइट। सो फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हैं किसी भी ओपन सोर्स पे, लाइक कोई भी आप मर्न स्टैक, मीन स्टैक, कोई भी आप स्टैक उठा के उस पर आप मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, सो लाइक इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल एज टाइम एंड दी रिसोर्स एज वेल। लाइक तो मतलब आपको उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होती हैं, आपको आपका मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, एफ़र्ट ज़्यादा लगता है। जबकि पावर प्लेटफॉर्म आप ये समझें कि इस तरीके का है कि अगर जस्ट आपको एक सिंपल सा कोई भी फॉर्म बनाना है तो जस्ट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड लाइक इट विल जस्ट क्रिएट अ फॉर्म फॉर यू। सो वो डिफरेंट स्टैक पे भी जा सकते थे, बट हमने या वो इस टेक्नोलॉजी पे क्यों मूव किया उसका रीज़न ये था कि उनको एप्लीकेशन चाहिए थी जल्दी। मतलब लाइक वो चाहते थे कि हमें विद इन दी 2 weeks 3 weeks हमें एप्लीकेशन कम्प्लीटली डेवलप चाहिए। सो दैट कैन बी ओनली बी पॉसिबल यूजिंग पावर प्लेटफॉर्म, लाइक बिकॉज इट्स अ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। सो आपको ना डेटा स्टोरेज का मसला है, ना सिक्योरिटी का मसला है, और उनके पास जो ऑब्वियसली आपको पता है कि डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट ईमेल सर्वर्स होते हैं, आउटलुक होता है, जीमेल, तो उनके पास आउटलुक के कुछ लाइसेंसेस भी थे, तो उनको बेनिफिट ये था कि उनकी लाइसेंसिंग कॉस्ट भी यहाँ पे सेव हो रही थी। सो उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी माइक्रोसॉफ्ट की, लाइक उनके पास जो लाइसेंस था उसी को वो यूज़ करते हुए हमने उनको एक सोल्यूशन दिया कि लाइक ये सोल्यूशन है, इसमें इसकी डेटा सोर्स शेयर पॉइंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उनको हमारी वो एप्लीकेशन अच्छी लगी, हमने ऑन टॉप ऑफ इट कुछ कस्टमाइजेशंस की थी उनकी बिज़नेस के हिसाब से, जो कि लाइक मैं समझता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें स्टैंडर्ड, तो उसमें आपको कस्टमर की बिज़नेस के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है और उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। सो काफ़ी मतलब वो था। और जहाँ जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि क्यों, तो उसका रीज़न यही था कि सबसे पहली हर कस्टमर की मेरे हिसाब से वो ये होती है कि वो चाहता है कि कम टाइम में अच्छी एक प्रोडक्ट डेवलप हो और कॉस्टिंग कम से कम आए। सो यहाँ उनकी कॉस्ट सेविंग बहुत हो रही थी एज वेल एज उनकी टाइम सेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो ये एक उनका मतलब अप्रोच थी, वो पावर प्लेटफॉर्म पे आए। Okay, so Power Apps does seem like a really good tech stack to move the businesses to, especially अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई cost saving हो, time saving हो, but there are most of the people के उन्हें ये होता है कि we don't want to move from our tech stack. जिस tech में मैं काम कर रहा हूँ currently, उससे मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं आगे move करूँ। तो how do you make sure या फिर how do you convince people to move towards the power platform and not on any other tech stack? जी, तो बेसिकली आप यहाँ पे बात करें चेंज एडॉप्शन की, जो मैं आपके क्वेश्चन से समझाऊँ। सो होता क्या है कि
अगर आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ऑब्वियसली एक नए प्लेटफॉर्म पे मूव करना किसी भी कस्टमर के लिए एक बहुत मुश्किल होता है। बट पावर ऐप्स की या पावर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि अभी रिसेंटली मतलब लाइक अराउंड 2 years बैक और 3 years बैक एक को पायलट लाइक उन्होंने अभी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसको वो अभी मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं। सो उसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, आप बिज़नेस यूज़र्स हैं, ठीक है, कब किसी भी कंपनी के, और आप एक जस्ट सिंपल सी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, सिंपल सी एप्लीकेशन, आप एक जस्ट अप्रूवल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, अप्रूवल की। सो उसमें क्या है कि आपने जस्ट सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पायलट को प्रोवाइड करने हैं। आपने लाइक इट शुड बी द टेक्स्ट, सो इट कैन रीड द टेक्स्ट, और वो फिर आपको उसके बिहाफ मतलब उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ऑटोमेटिकली बैकएंड पे टेबल्स जनरेट कर देगा, आपके लिए मतलब एक फ्रंट एंड बना देगा, जिसको आप कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन बना के दे देगा। तो आप जस्ट लाइक इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आप इजीली उसके थ्रू एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो चेंज एडॉप्शन क्यों आसान है, क्योंकि इसमें कोई मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, और लाइक अगर आप बात करें किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की, तो उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज रखनी पड़ती हैं, डेवलपर रखने पड़ते हैं, क्यूए के बंदे रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट पावर ऐप्स में ये है कि अगर आपके पास कोई डेवलपर नहीं भी है, कोई क्यूए का बंदा नहीं भी है, तो इवन इसमें ये भी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने टेस्ट सिनेरियोज़ बना के उनको टेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपको जस्ट एक यू कैन से, अगर आप बिज़नेस यूज़र हैं तो आप लाइक इस प्लेटफॉर्म को विद इन 3 to 4 months लर्न कर सकते हैं। बट अगर आप ओपन सोर्स की बात करें तो आप ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। उसमें आपको हर फ्रंट एंड के लिए UI UX के लिए अलग बंदा चाहिए होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अलग बंदा चाहिए होता है, बैक एंड इंजीनियर अलग होता है। इसमें आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का फोकस है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का, वो यही है कि आप ये समझें कि आपको कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हों आपकी, और आप खुद बहुत सारी चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकें। तो आपको किसी UI UX डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। इसके अपने थीम्स हैं, अपनी कस्टम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, इसके बिल्ड इन टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो इट्स लाइक यू कैन से बहुत आसान है ये। तो इसलिए जो है वो चेंज एडॉप्शन भी मेरे हिसाब से, और लाइक जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी बिजनेस यूज़र इस पर ईज़िली मूव कर सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक कि जैसे कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा एक एप्लीकेशन बना सकता है जाके पावर ऐप्स के ऊपर। लाइक आई एम रियली इनकरेज टू मेक एन एप्लीकेशन माई सेल्फ नाउ। तो एनीवेज, एज यू टॉक्ड अबाउट को पायलट हेल्पिंग development in power apps, what is the role, like how do you see AI evolving within the power apps? You know, जैसे tools, को पायलट जैसे tools हैं, वो किस तरीके से evolve करेंगे power apps के अंदर, और हम क्या आगे फ्यूचर में देखने जा रहे हैं? जी, सो बेसिकली एज यू नो, लाइक कि अभी जो आने वाला वक्त है वो AI ही है सब कुछ। Definitely. आपको पता है कि ऑटोनोमस कार्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो लाइक आने वाले वक्तों में यही होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मोस्टली AI बेस्ड ही होंगे, कि आपको जस्ट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। और वो अभी क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं है सिस्टम की, ऑब्वियसली जो ह्यूमन एक काम करता है वो मशीन नहीं कर सकती। बट ये है कि दे आर स्टिल लाइक दी माइक्रोसॉफ्ट इज स्टिल वर्किंग ऑन द AI साइड, जनरेटिव AI इन को-पायलट। सो अगर हम बात करें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने रिसेंटली OCR का आपको शायद आइडिया हो। OCR इज़ बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, राइट? सो ये चीज़ पहले भी हो रही थी। लाइक आप अपने पास डेटा साइंटिस्ट हायर करें, डेवलपर्स हायर करें, आप डेटा मॉडल ट्रेन करें, उसमें आपको मतलब बहुत सारी बजटिंग, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को भी रखना पड़ा था। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक को पायलट का फीचर दिया हुआ है, या AI की हम बात करते हैं, तो उसमें ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल्ट इन कनेक्टर्स हैं कुछ, कि आप लाइक अगर आपको एक OCR की फंक्शनैलिटी बिल्ड करवानी है, सो उसके लिए आपको एक पहले डेटा टीम बिठानी पड़ेगी, मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो उस पर ट्रेन करेगा मॉडल को, डेटा सेट लेगा। सो माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑलरेडी बिल्ट इन कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। सो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, एक्सपेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, सो यूजुअली एक्सपेंस में क्या होता है कि आप आपके पास रिसिप्ट्स होती हैं, आप कहीं जाते हैं, वो रिसिप्ट्स को आप ला के फाइनेंस को देते हैं, वो उसको सिस्टम में
इनपुट कर लेती है। बिल्कुल। तो अब OCR क्या करता है कि आप जस्ट उस इमेज को ऐप के अंदर OCR इंटीग्रेटेड एज्यूम करें, तो आप उस इमेज को कैप्चर करें और वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उस इमेज से निकाल के, और वो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपके जो भी एक्सपेंस का मॉड्यूल होगा उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। सो लाइक मतलब आपको ये नहीं है कि आप रिसिप्ट देख के और फिर उसको अपने लैपटॉप से टाइप करके एक सो यू जस्ट नीड टू स्कैन ऑल द इमेजेस और इट कैन रीड द इंफॉर्मेशन, important information, and like it will just you can say कि आप उसको एप्लीकेशन में वो स्टोर कर देगा। सो ये एक ऐसा फीचर है। अब ये ये वैसे भी डेवलप हो सकता है, बट आपके पास कॉस्टिंग की बात करें तो यही आप जाके अगर एक प्रीमियम कनेक्टर यूज़ करें अपनी पावर एप्स के अंदर, सो आपको ये कुछ मेरे ख्याल से समथिंग अराउंड $1 $2 समथिंग इस तरह की कुछ कॉस्टिंग होती है प्रीमियम कनेक्टर की जो लाइसेंस में मिलता है। सो ये आपकी जो कॉस्टिंग है, बजटिंग है, रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि ऑलरेडी जिन पे मॉडल ट्रेन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, सो आपको मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी। सही। ओके, सो जैसे आपने OCR के बारे में बात की कि यू कैन इंटीग्रेट OCR इनटू योर प्रोडक्ट्स, एंड एक AI टूल को हम अपने प्रोडक्ट्स में लेके आ रहे हैं। Many of our viewers and listeners would be very curious, especially if they own a business and are making products like that, कि AI को हम अपने प्रोडक्ट्स में जब इंटीग्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो इसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं या फिर इसकी डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? तो आई वुड लव इट इफ़ यू वुड शेयर। देखें, अगर हम बात करें कॉस्ट इम्प्लीकेशंस की या डेवलपमेंट की स्पेशली, सो मैंने आपको जैसे बताया कि डेवलपमेंट की कोई कॉस्ट नहीं है। कस्टम कनेक्टर्स बने हुए हैं, यू कैन जस्ट बोरो दैट कस्टम कनेक्टर फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, और आप जस्ट उसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर लें। इसी तरीके से OCR तो एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जिसको आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं कॉस्ट के हवाले से। तो आपको हाँ, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका प्लान क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, AI को यूज़ करने का। मतलब आपके पास अगर एक एप्लीकेशन है, सो आप किस लेवल तक उस एप्लीकेशन को लेके जा सकते हैं कि वो AI के उसमें सारे फीचर्स हों। तो अगर तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एक्सपेंस मैनेजमेंट की, तो एक्सपेंस मैनेजमेंट अगर मुझे एक ऐप चाहिए और मुझे एक ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए AI की जिसमें OCR इंक्लूड हो, सो मैं आइदर कि मैं एक पूरी डेवलपमेंट टीम बिठाऊँ, डेटा इंजीनियर्स बिठाऊँ, डिफरेंट रिसोर्सेज हायर करूँ, फिर उनको ट्रेन करूँ, डेटा लाऊँ, डेटा कलेक्ट करूँ, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना। सो आपकी वो कॉस्ट बच गई। आपको जस्ट एक ऑब्वियसली एक फ़ीचर बना हुआ है, एक ऑलरेडी बिल्ड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो आपने जस्ट अपनी ऐप के अंदर उसको यूज़ कर लेना है। सो इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं। चैट GPT के कनेक्टर्स अवेलेबल हैं पावर प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसको आप अपनी पावर एप्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, हमारी मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमने AI के यूज़ केसेस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सो वो क्या करती हैं कि मतलब हम उसको इमेजेस देते हैं ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी एक मतलब सर्टेन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस देते हैं, वो मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड हुआ है और वो हमें रिजल्ट्स बता देता है कि उस ऑब्जेक्ट्स में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं कितने। सो ये सारे बेसिकली उसके अंदर कवर होते हैं। सो हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या हमें कोई डेवलपमेंट टीम या पूरा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो ऑब्वियसली आपको फिर मतलब अगर आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स में AI को बहुत, सो फिर आप वो कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो इमरान, जैसे आपने कहा कि जो मॉडल्स हैं AI मॉडल्स, वो किसी मतलब माइक्रोसॉफ्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट के पास होस्टेड है, राइट? सो डेफिनेटली उन मॉडल्स को जैसे आपने कहा कि ऑब्जेक्ट्स हम दिखा के ट्रेन करते हैं या फिर हम OCR के लिए रिसीट्स दिखा के ट्रेन करते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो हमारा ये वाला सारा डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा ओवर द क्लाउड टू द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स। तो ऑब्वियसली एक इसके अंदर ये सवाल फ़ौरन जहन में आता है कि हमारा ये सारा डाटा जो है वो क्लाउड पे कितना सिक्योर है, व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर हियर? सही। सो बेसिकली क्या होता है कि देखें अभी आफ्टर 2024 2025 एंड बियॉन्ड, सो मतलब अब हर बंदा जो कि इवन क्लाउड पे नहीं भी जाना चाहता था उसको जाना पड़ेगा फॉर देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
पहले का माइंडसेट था कि आपके पास अपना सर्वर हो, अपना डेटा Definitely. सर्वर हो, आप सारी मेंटेनेंस रखें, तो आपको उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती। सर्वर की मेंटेनेंस कॉस्ट है, सर्वर अगर क्रैश कर जाए, ठीक है, सर्वर की रिकवरी, तो आपके लिए बैकअप आपको सर्वर्स रखने पड़ते थे, मतलब बहुत सारी इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें थी, राइट। सो मतलब आपको एक अलग से अपनी एक पूरी टीम बनानी पड़ती थी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो आपको इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैंडल्स इटसेल्फ। सो आपका जहाँ तक बात है डेटा सिक्योरिटी की, तो डेटा देखें सिक्योर है आपका। लाइक माइक्रोसॉफ्ट आपको बताता है जब आप कोई भी मतलब अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, पावर एप्स के अंदर, तो वो आपसे पूछता है कि आप किस अपना इन्वायरमेंट का डेटा किस सेंटर में रखना चाहते हैं, यूएई रीजन में, यूएस में, यूरोप में। सो वो पूछता है। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है, जिस पे वो आपसे मतलब लीगल एग्रीमेंट साइन करवाता है कि आपका डेटा सिक्योर होगा, डेटा रिकवरी का इशू नहीं होगा, उनके पास मल्टीपल बैकअप्स हैं। लाइक आप कितने बैकअप्स अरेंज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ऑन प्रेम की बात करते हैं तो आप कितने बैकअप रख लेंगे, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इवन अब जो वक्त आ रहा है उसमें यही है कि क्लाउड पे ही लोग ज़्यादातर मूव कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब आपको मेंटेनेंस देखनी है, आपको एक बंदा रखना है 24/7 जो सर्वर्स को देखता रहे, सर्वर्स गर्म तो नहीं हो रहे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना। लाइक अगर आप एक चीज़ रख रहे हैं सो आपकी बहुत सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, जो कि अभी यूजुअली लोगों को इतना नहीं इस चीज़ का आइडिया है, बट आपकी बहुत सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मतलब डेटा इज़ सिक्योर। लाइक अगर हम बात करें तो लाइक अराउंड 50 to 60% यूज़र्स जो है वो ऑलरेडी क्लाउड पे मूव कर चुके हैं। सो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं सो उनके पास बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है, तो वो अभी भी इस उसमें है कि उनको मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट विद द टाइम, लाइक जिस तरीके से टाइम गुजरता जाएगा, एक टाइम आएगा कि एवरीवन लाइक सबको क्लाउड पे ही मूव करना पड़ेगा। मेक सेंस। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड इनके सॉल्यूशंस में डाटा सिक्योर है ओवर द क्लाउड एंड हम एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हाउ डज काइस्पे केटर टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? किस तरीके से हम जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किस तरह रिजॉल्व करते हैं, स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस? Okay, so basically at KAISPE we simply, you can say, the process of building the custom AI application. So like we are, you can say, like as an advisor, as a consultant, like we know about the product. So like if someone अगर कोई product लेना चाह रहा है या कोई पावर एप्स में मूव करना चाह रहा है, सो लाइक और ऑब्वियसली दे नीड समवन गाइडेंस, राइट। लाइक उसके बगैर तो कोई काम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने पावर एप्स ले लिया, आप बिजनेस यूज़र हैं और आपको कुछ पता नहीं है और आप खुद ही, तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट गाइड की ज़रूरत है, और किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिनके पास इन प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म और जो एआई है, सही है, को पायलट है, तो आपको ऑलरेडी एक एक्सपर्ट की तो ज़रूरत होती है जो आपको एटलीस्ट एडवाइस करे कि अगर आप ये चीज़ जा रहे हैं तो हर चीज़ की मल्टीपल अप्रोचेस हैं, राइट। सो अब कौन सी अप्रोच सही है और कौन सी अप्रोच कम टाइम में इम्प्लीमेंट होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा यही है कि हम मतलब जो कैस्पे मतलब एक्सपर्टीज़, लाइक वी आर द गोल्ड पार्टनर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो हमारे पास हमने काफ़ी अभी पास्ट में कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारी फील्ड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन है, उसमें हमने कुछ यूआई के यूज़ केसेस इम्प्लीमेंट किए हैं। सो लाइक वी डिडंट डू एनी डेवलपमेंट ऑन द डेटा साइड, बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स, यू कैन से, कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किए हुए हैं जिस पे आप, और वो बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, सो हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को टारगेट भी कर रहे हैं, उसमें आपकी वेजिटेशन मैनेजमेंट आ जाती है, इंडस्ट्री होती है, ठीक है, और आपकी इंटीरियर डिज़ाइन। सो हमारी ऐप क्या करती है, जिसमें हमने एआई के ऐप फीचर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। सो आप जस्ट उसको, जिसकी मैं भी बात भी कर रहा था कि आप किसी भी ऑफिस में गए, वहाँ पे आपने पिक्चर्स ली डिफरेंट एंगल से, तो वो क्या करेगा कि वो पीछे से एक इमेज प्रोसेसिंग करेगा, वो बताएगा कि इस पिक्चर्स में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, लाइक क्या क्या डिफेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो उस बेस पे आपको एक समराइज रिज़ल्ट देगा।
और वो रिज़ल्ट से आपको क्या हेल्प होगी कि आप उसकी बेस पे ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर एक फील्ड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए गया है तो उसको अब मतलब अगर उसको इंस्पेक्शन करने में 1 घंटा लग रहा था पहले कि वो खुद से लिख रहा था सारी चीज़ें, अब जस्ट वो आप सिर्फ इमेजेस देंगे और वो आपको पीछे जो हमारा मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है वो बता देगा उसके रिजल्ट्स के इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। और जब वो जॉब परफॉर्म करने जाएगा किसी भी साइट पे, फील्ड इंस्पेक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जॉब परफॉर्म करने जाते हैं, आइदर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं। सो जो भी जॉब परफॉर्म करने जाएगा तो उसको ये पता होगा कि मुझे ये सारे इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं, ये सारे इन्वेंट्री के अंदर से ये आइटम्स लेके जाने हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एसी की मैं बात करूँ तो एसी में अगर कोई लीकेज है, वाटर लीकेज है, गैस लीकेज है, सो वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा। सो इस हिसाब से आप अपनी एक जॉब स्केड्यूल कर सकते हैं और ये जॉब ऑटोमेटेडली स्केड्यूल भी हो सकती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो हमें हमारा एआई मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन आवर field inspection application. There are a lot of use cases and examples that we are going to implement in future in our application. ओके सो जैसे आपने बताया कि एआई के ऊपर काइस्पे इस वक्त काफ़ी काम कर रहा है, सो आई थिंक फ्यूचर जो है वो हमारा एआई के ऊपर ही है मेनली, बिकॉज हम जो हैं वो इस वक्त साइबॉर्ग्स हमने रियल लाइफ में देख लिए, जैसे टेस्ला ने जो रोबोट्स बनाए हैं अपने एआई पावर्ड रोबोट्स हैं। तो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एआई के, मतलब ये कहाँ तक एआई जाएगी एंड मतलब क्या हमें एट द एंड ऑफ द डे इसे बंद करना पड़ेगा? बिकॉज वही वाला एक सवाल आता है लोगों के जहन में कि एआई टेक ओवर द वर्ल्ड, तो इस तरीके का तो कुछ नहीं होने जा रहा है। फिर क्या आपके ओपिनियन में क्या एक फ्यूचर है एआई का? देखिए अगर हम एआई के फ्यूचर की बात करें तो उसमें यही है कि मतलब ऑब्वियसली आप देख लें कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा हो गई है। लाइक आप मोबाइल डिवाइसेस की बात कर लें या आप स्मार्ट सिस्टम्स की बात कर लें, आपके होम के अंदर स्मार्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, आईओटी सिस्टम्स लगे हुए हैं जो आप जस्ट उसको लाइक अपने बटन बैठे बैठे से मोबाइल ऐप से ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी अगर हम उसमें देखें तो ऑटोनोमस कार्स कितनी चल रही हैं कि जिसमें आप लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ यू नो आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप गाड़ी आपकी मतलब वो ट्रेंड है, वो भी एक मॉडल पे ट्रेंड है, उसको ट्रेन किया गया हुआ है, ठीक है, वो अपने हिसाब से लेन्स चेंज करती है। तो ये लाइक सो एआई अब लाइक एआई इज़ एवरीवेयर लाइक तो एक टाइम आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आप खुद से कर रहे हैं वो आप एआई ही कर रहा होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, आप किसी रूम में अंदर एंटर होते हैं सो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए अगर आपका एटमॉस्फेयर मतलब आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो डार्क हो। सो लाइक ये सारी चीज़ें, इसमें आईओटी भी आती है, इसमें एआई भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो फ्यूचर यही है कि ऑब्वियसली देखें ह्यूमन वाली चीज़ तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, हम कितनी भी एडवांसमेंट या उसकी बात कर लें, बट ऑब्वियसली ये हेल्प ज़रूर करेगा हमारी बहुत सारी चीज़ों में, हमारी टास्क ऑटोमेशन में। जो हम काम मैन्युअली करते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ओसीआर की, तो वो हम मतलब कितना एक हेक्टिक वर्क है कि अगर आपके पास दिन की 100 इन्वॉइसेस आई हुई हैं और आपको डेटा एंट्री करनी है तो आप 100 इन्वॉइसेस बैठ के जो है खुद ही डेटा एंटर कर रहे हैं। So आपको कितना एग्जैक्टली आप डेटा एंट्री के लिए पहले बंदे हायर करते थे, आप मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जॉब्स जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीटेटिव टास्क हैं। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपको मंथ एंड पे सब लोगों की अटेंडेंस जो है वो काउंट करनी है, कितने बंदे आए, क्या हुआ, किसने कब क्लॉक इन किया, क्लॉक आउट किया। सो आप विद यूजिंग दी एआई और इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप जो है उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बचा सकते हैं, अपनी रिसोर्स कॉस्ट बचा सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिफरेंट एंगल से एआई आपको हेल्प करेगा और फ्यूचर भी है ये एआई। सही, सो दैट सीम्स लाइक अ रियली ब्राइट फ्यूचर फॉर एआई एंड ऐसा लगता है कि आगे जाके विल बी नीडिंग इवन मोर कंपनीज लाइक काइस्पे जो कि एआई के ऊपर काम कर रही हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे and we will be meeting you guys in the next podcast. Thank you so much Imran for being here. Thank you so बहुत much. शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. So that was all. Take care and goodbye. Thank you so much.